کوشش میں سستی نہ کرو. اور اس کے لیے ہم نے گریگورین یعنی کہ گریک یونانی لفظ دیکھا. یاد ہے کیا ہے؟ پروسپاتھیو، جس کا مطلب ہے سخت محنت کرنا. یہاں پر جو لفظ اردو میں آیا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، کوشش کے لیے جو یونانی لفظ ہے، جو بائبل نئے عہد نامے کی، نئے نیم کی جو ریجنل لینگویج ہے، اس میں جو لفظ پروسپاتھیو پاتھیا آیا ہے، پروسپاتھیا ایکچولی لفظ ہے پروسپاتھیا، اس کا مطلب ہے سخت محنت کرنا، مشقت کرنا، انتھک محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ جب تک ہمیں وہ ٹارگٹ جو ہم نے رکھا ہے، جس کام کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، ہم محنت کرتے رہیں جب تک ہم اس کو اچیو نہیں کر لیتے، حاصل نہیں کرتے، تب تک ہم نے محنت کرنی ہے، یعنی کہ جان فشانی کرنی ہے. ہاللیلویہ. آج میں اسی ٹاپک کو آگے لے کر بڑھوں گا، اور آج ہم جو دیکھیں گے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، وہ ہے پانی پر چلنا. واک، پانی پر نہیں، پانی میں چلنا. واک ان واٹر. میرے عزیزو، ان سارے پیغامات کا جو میں آپ کے سامنے وچن رکھ رہا ہوں، ان سب کا جو ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں وہ ہے اسپرچل ایفرٹ، روحانی جستجو، کوشش، محنت، آتمک کوشش کرنا، محنت کرنا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میرے عزیزو، آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 47 چیپٹر، اس کی 2 آیتیں میں پڑھوں گا اور کچھ اور حوالے بھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اتپتی یعنی کہ پیدائش 26 نکال کے رکھیں اور 32 اور 33 2 آیتوں کو پڑھنا ہے. اور پھر یسایہ 58 باب کی 11ویں اور 12ویں آیتوں کو ہم دیکھیں گے. ان 3 آیتوں پر ہم آج غور کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور بھی آیتیں ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ صرف ان کو کوٹ کروں گا. حزقیل میں سے میں خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں. 47 اس کی ورس جو ہے وہ 4 اور 12، چوتھی اور 12ویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 2 آیتیں میں پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اتپتی میں سے، پیدائش میں سے، بھائی بوائز آپ پنجابی میں پڑھنا اور بیٹی سارا یسایہ 58 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت کو آپ نے پڑھنا ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے اپنی کی ورس آج کی رکھتا ہوں. حزقیل 47 ورس 4. پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا. تیسری آیت سے میں پڑھوں گا تاکہ اور زیادہ واضح ہو. تیسری اور چوتھی آیت اور پھر 12ویں آیت. اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹخنوں تک یعنی کہ گٹیا تک، ٹخنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں
چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں چلایا اور پانی کمر تک تھا. آمین. 12ویں آیت. اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف یعنی کہ ختم نہ ہوں گے، اور ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دعا کے لیے ہوں گے. آمین. میرے عزیزو، یہاں پر اردو میں جو لفظ آیا ہے آخر میں کہ یہ جو پانی ہے یہ مقدس گھر کو کہتے ہیں، بھون کو کہتے ہیں. پنجابی میں بھون ہی آیا نا، ٹھیک ہے نا. بھون سے، خدا کے گھر سے یہ پانی جاری ہے. ہاللیلویا. پانی جو ہے یہ ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے، ہولی اسپرٹ کو. اور بائبل میں پانی خدا کے وچن کو، کلام کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ پانی جو ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے بہتا ہے؟ یہ خدا کے گھر سے، خدا کے بھون سے بہتا ہے. اور آج یہ پانی جو ہے، یہ ہولی اسپرٹ جو ہے یہ کلیسیوں میں بہتا ہے، یہ اندر کی طرف بہتا ہے. یاد رکھیے، اسرائیل کو خدا نے بلیس کیا ہے اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ پانی بہتا ہے. اسرائیل جو خدا کی قوم ہے، خدا کی الگ کی ہوئی قوم، اس میں پانی بہتا ہے. یہ میں اس کا جغرافیکلی بات کرتا ہوں. اس لیے آج اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے. اس سے پہلے دنیا کا سب سے بنجر ملک وہی تھا. 1800 سال سے زیادہ وہاں بارش نہیں ہوئی، وہاں ایک ایک درخت سوکھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن خدا کا فضل شروع ہی سے، خدا کے وعدے شروع ہی سے اسرائیل کے ساتھ ہیں. خدا نے وہاں پر پانی کی ندیوں کو دوبارہ سے جاری کیا اور آج اسرائیل دنیا کا سب سے زرخیز ملک ہے، جہاں پر سب سے زیادہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہم ساری دنیا کو کھلا سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. پانی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بہتا ہے. ہاللیلویا. اور کلیسیا میں خدا کے روح کا پانی بہتا ہے. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو، آئیے اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی اسپرچل ایفرٹ کی ہیں. ہماری جو آتمک روحانی جستجو ہے، محنت ہے، وہ کتنی ہے. خدا کے کلام کو اگر ہم دیکھیں، جب ہم شروع ہی سے خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نبیوں کو دیکھتے ہیں، سینٹس کو دیکھتے ہیں، سنتوں کو دیکھتے ہیں، جو پوتر لوگ ہیں، جو مقدس کیے ہوئے لوگ ہیں، رسول ہیں، خدا کے خادم ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندی آپ کو یہاں پر ایسا نہیں ملے گا جس نے محنت نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی طرح کی سٹرگل نہ کی ہو. خدا کے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ سٹرگل کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو دنیا کے ہیں. وہ ذہن سے سوچتے ہیں، وہ محنت کرنا پسند نہیں کرتے. اس لیے آج بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں کہ گورا مل جائے، کالا مل جائے، نیلا مل جائے، پیلا مل جائے، چینا مل جائے، کوئی ہمیں مل جائے تاکہ ہمیں ایڈ آئے اور ہم منسٹری کریں. ان کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہے، ان کو خدا نے بلایا نہیں منسٹری کے لیے. پر جن کو بلایا ہے وہ ایسے نہیں کرتے. پترس کو خدا یسوع نے کہا کہ اگر تم مچھلی پکڑنا چاہتا ہے تو جال کو گہرے میں ڈال. حالانکہ ساری رات اس نے محنت کی، کوئی ہاتھ، ایک دانہ بھی مچھلی کا ہاتھ نہیں لگا. پترس چاہتا تھا کہ اس کے پاس مچھلیاں آئیں تاکہ وہ بزنس کر سکے.
उसने इस बात को नहीं देखा कि मैंने सारी रात, मैं माहिर कारीगर हूं और ये एक बढ़ई, एक कारपेंटर तरखान हो के मुझे कहता है, ये तरखान मैंने मशवरे देगा। यीशु से मशवरा लें, वो हर तरह के बिजनेस का आपको जो है वो मशवरा देगा, सलाह देगा। स्पिरिचुअल है, आपका फिजिकली है, आप कोई भी बिजनेस में हैं, आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, चर्च में काम कर रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में हैं, वहां पर खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। पतरस को कहा गहरे में जाल डाल, और पतरस ने उस बात को माना। उसने ये नहीं देखा कि थका हूं, मेरे साथी थके हुए हैं, उसने और ज्यादा मेहनत की। तो क्या मेरे जीजो, क्या हुआ फिर पतरस के साथ? इतनी मछलियां कि उसे दूसरों को बुलाना पड़ा। जब हम थके होते हैं, जब हम बिल्कुल हमारा जिस्म जवाब दे जाता है, फिर वक्त है कि हम और ज्यादा मेहनत करें, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपकी कारोबारी जो मेहनत है, फिर आप उसका अजर पाएंगे, इनाम पाएंगे, रिवॉर्ड पाएंगे। हालेलुया। इतनी बरकत होगी कि आप उसको गिन नहीं सकेंगे। आपके पास जो है वो खत्ते, आपके पास जो रखने की जगह है वो कम पड़ जाएगी। आमीन। मेहनत करना सीखें। चर्च के लोग कहते हैं हमें 100% जो है वो 100% रिजल्ट चाहिए। कलीसिया के लोग हमेशा कहते हैं कि 100% हमें रिजल्ट चाहिए। तो बंदा एक ही कोशिश करता रहे, दो ही जोर लगाते रहें, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपको 100% मिले? खुदा का काम हम सब ने मिलकर करना है ताकि हमें 100% रिजल्ट मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए पैदाइश की किताब में से भी देखते हैं, उत्पत्ति में से भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 हवाले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको मुसलसल के साथ जारी रखूंगा। उत्पत्ति पैदाइश 26वां अध्याय, उसकी 32वीं और 33वीं 2 आयतों को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਟੈਲੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਬਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਹੈ। हालेलुया, आमीन। एक और हवाला पढ़ते हैं, फिर आगे निकलते हैं। यशाया 58 बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना को बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। आमीन। ये इवेंजलिस्ट है, ये इवेंजलिज्म है। इवेंजलिस्ट का काम है कि वो जाता है और नए लोगों को चर्च में लेकर आता है, कलीसिया के साथ उनको लाकर जोड़ देता है और फिर उनको छोड़कर पास्टर और कलीसिया के पास वो आगे निकल जाता है। वो कलीसिया को तामीर करता है, कलीसिया को बनाने में मदद करता है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं इनमें से इस हवाले में। तो जो हमने उत्पत्ति पैदाइश की किताब में से हमने देखा है, जहां पर आकर खुदा के बंदा इजहाक के मुलाजिम नौकर उसे कहते हैं कि हमें पानी के चश्मे मिले हैं, और उसका नाम सबा रखा और फिर उस जगह का नाम बैर सबा रखा। इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि फलस्तीन में कनान में काल पड़ा और खुदा का बंदा इजहाक जो है वो फलस्तीन में चला गया और वहाँ पर जाकर वो रहने लगा।
اور اس نے وہاں پر کنووں کو کھودا. کنویں کھودنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. آج تو قدرے آسان ہے کیونکہ مشینریز ہیں. اس دور میں آپ چلے جائیں, آپ 3,500-4,000 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ بڑا ہی یہ مشقت بھرا محنت کا کام نظر آتا ہے, جہاں پر کوئی بڑے اوزار نہیں ہیں کھودنے کے لیے, مٹی اٹھانے کے لیے. ایک بڑا مشکل کام کنویں کھودنا. اور کنویں جو ہے, پانی جو ہے, یہ پانی زندگی کی علامت ہے. جہاں پر پانی ہوتا ہے وہیں پر آبادیاں بستی ہیں, لوگ وہیں پر بستے ہیں. دریاؤں, ندی نالوں کے پاس آپ دیکھیں جہاں پر پانی ہوگا وہیں پر انڈیا اور پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, ملیشیا میں بھی آپ جہاں پر پانی نہیں وہاں پر آپ کو زندگی کا کوئی بھی نشان نہیں ملے گا. جہاں پانی ہے وہیں پر لوگ بستے ہیں. ہاللیلویا. تو آئزک نے, اسحاق اور اس کے نوکروں نے کنویں کھودے. اور کیا ہوا, جب ہم اس چیپٹر کو اتپتی پیدائش 26ویں باب کو شروع سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اسی سال, جس سال وہ وہاں پر آیا تھا, کھیتی کی. خدا نے اس کو 100% دیا, 100% فصل اسے مل گئی. میرے عزیزو, جب تک آپ بیج نہیں بوئیں گے, بیج آسانی سے نہیں بویا جاتا. کتنے لوگوں نے لابیں لگتی دیکھی ہیں, چونا, کوئی آسان کام نہیں. کس وقت لگائی جاتی ہیں؟ جون سے گرمی, فل گرمی ہے. تو یاد ہے سردیوں میں جب فل ٹکر ہوتا ہے, ہر طرف ٹھنڈ ہوتی ہے جیسے آج کل ہے, تو کیا ہوتا ہے, کنک بیجی جاتی ہے, جتنی سی روٹی کھانے ہیں. تو کیسے ہے بیجی جاتی ہے وہ, انج کر کے, چلو انج کر کے, لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہیں. گرمی, فل گرمی میں فصل جب بوئی جاتی ہے تو گرمی کا عروج ہوتا ہے, گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے. اور جب سردیوں کی فصل بوئی جاتی ہے تب سردیاں عروج پر ہوتی ہیں. اور عام آدمی سردیوں کی اس جگہ جہاں پر ہمارے لیے گندم بوئی جاتی ہے وہاں پر جائے تو شاید تھوڑی دیر میں وہ اس کی کلفی بن جائے. اور اسی لیے تو زبور نویس کہتا ہے, بیج دا چک کے زبیرہ روندا ہویا جاندا ہے. بیج بونا آسان کام نہیں ہے, مشکل سے ہی بویا جائے گا. اور آپ جتنا بوئیں گے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے, ہم جتنا بیج بوئیں گے ہم اتنا ہی کاٹیں گے. ہم جتنی ایفرٹ کریں گے, جتنی کوشش کریں گے, ہم اتنا ہی کاٹیں گے. ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں اس لیے اس کا ریوارڈ جو ہے ہمیں تھوڑا ملتا ہے. ہم محنت کریں, سخت محنت کریں. ہم نے پچھلے سنڈے دیکھا کہ کشتی بنانے کے لیے نوح کو 120 سال لگ گئے. وہ لگا رہا, محنت کرتا رہا, تھکا نہیں, ہارا نہیں. بے شک فزیکلی وہ تھک جاتا تھا پر پھر بھی وہ کام کرتا تھا, دن رات 120 سال. آپ امیجن کریں کتنی سٹرگل, کتنی محنت, کتنا لمبا محنت کا یہ سفر ہے جو اس نے کیا. خدا کا کوئی بندہ بھی آپ کو جو بائبل میں بڑا شخص ہے, آج ہم کہتے ہیں خدا تو مجھے موسیٰ کی طرح بنا دے, خدا تو مجھے نوح کی طرح بنا دے. کیا آپ اپنی ساری عمر خدا کے کہنے کے مطابق کسی چیز کو بنائیں گے؟ سارے کاموں کو چھوڑ دیں اور اسی پہ لگے رہیں گے؟ اور کیا اگر آپ موسیٰ کی مانند بننا چاہتے ہیں تو کیا بار بار پہاڑ پر جائیں گے اور ایک سے کئی دفعہ جو ہے وہ پہاڑ پر موسیٰ گیا اور اس نے 40 دن کچھ نہ کھایا,
कुछ ना पिया, खुदा की हजूरी में पड़ा रहा। ऐसे ही खुदा का जलाल, खुदा का नूर, खुदा का तेज जो है मूसा के चेहरे पर नहीं था। वो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारता, खुदा से उसका कलाम लेता, सख्त मेहनत करनी पड़ती है खुदा का बंदा कहलाने के लिए। इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो ईमान से नहीं हटे। हमारे जो स्पिरिचुअल फादर्स हैं, हमारे रूहानी जो बाप हैं, आदम, नूह और अब्राहम, इसहाक, याकूब, और फिर उसके बाद जो आगे लड़ी चलती है, वो सख्त मेहनत करते रहे, ईमान पर कायम रहे, स्ट्रगल करते रहे। और लिखा है वो ईमान पर कायम रहे, अपने विश्वास पर खड़े रहे, इसलिए खुदा भी उनका खुदा कहलाने से ना शर्माया। खुदा उनका खुदा है इसलिए कि वो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अगर आप 100% चाहते हैं तो 100% जो है आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर 12वीं आयत तो मैं दोबारा से पढ़ूंगा, हिजकिय्याह 47:12। और दरिया के करीब दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी माकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदिस में से जारी है, और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दुआ के लिए होंगे। इससे पहले कि आप खुदा की बरकतों, फलों को लें, नेमतों को लें, आपको फल मिले, आपकी नेमत का फल, हम देखें कि हमने मेहनत करनी किस तरह से, स्ट्रगल करनी कैसी है, स्पिरिचुअली तौर से, चर्च में, अपने बिजनेस में हमने कैसे मेहनत करनी है। हमने इससे ऊपर जो पढ़ा है, चौथी तीसरी आयत में पढ़ा है, एक मर्द जो है, मर्द खुदा, यहाँ पे जो मर्द है ये फरिश्ता है, और हिजकिय्याह को क्या कहता है, उसने कहा है कि तूने चलना है। चलना किस में है? तूने पानी पर चलना है। और पैमाइश कितनी दी गई है? कितनी? 1000 हाथ। ये यहां तक हाथ होता है जो बाइबल की पैमाइश है, मेजरमेंट है, और ये 1.5 फीट बनता है। 1000 हाथ का मतलब है 1500 फीट। और पानी में चलना कोई इतना आसान काम नहीं है। जब आप साहिल समंदर पर जाते हैं तो बड़ा शुरू में जब आप पानी में पाँव रखते हैं तो थोड़ा तो आप चल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली फ्लडेड टाइम तो कोई भी शख्स पानी में चल नहीं सकता। बात बार मुंह से निकल रही है पानी पर चलना। हम पानी में चल सकते हैं। पानी पर चलने की कुदरत सिर्फ मेरे और आपके यीशु की है। हालेलुया। वही है जो पानियों पर चलता है। जोरदार तालियों से हालेलुया उसकी हम पानी में चल सकते हैं। और पानी जो है, मैंने पहले बताया कि ये होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट की कुदरत है। हम उसकी कुदरत में चल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो फुल ऑफ होली स्पिरिट है, वो भरा हुआ है होली स्पिरिट से। हालेलुया। जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया तो हमें नजर आता है कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जो है उस पर आके ठहर गया। हालेलुया। मेरे जीजो, हम पानी में चलेंगे। और क्या पहला स्टेप क्या है? 1000 हाथ यानी कि 1500 फीट पानी में चलना है। और ये पानी कितना है? टखने तक, गिट्टियां तक। हमारी पहली जो कोशिश है, चलना है, लंबा सफर पानी में तय करना है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम जो है वो जल्दी से
डूबने तैरने की हालत में आ जाएं, हमारे पास बड़ी ही ब्लेसिंग्स आ जाएं। शॉर्टकट रास्ता, जैसे मैंने अभी बताया कि लोग इंटरनेट पर बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं है। मूसा कई कई दिन खुदा के साथ गुजारता, यीशु मसीह सारा दिन मिनिस्ट्री करता, कभी सामरिया, कभी यहूदिया, कभी गलील, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। यीशु खिदमत करता, प्रीचिंग करता, अपनी मिनिस्ट्री करता, लोगों को शिफा देता, और रात रात को यीशु मसीह जो है कभी बागों में दुआ करता, कभी वीरानों में दुआ करता। यीशु मसीह एफर्ट करता रहा, दुआ करता रहा। तो हम एकदम से कैसे तैरने की हालत में आ जाएंगे, ऐसे होली स्पिरिट के फ्लो में कैसे आ जाएंगे। ये जो टखनों तक, गिट्टियां तक ਜਿਹੜਾ पानी है ना, ये समझो कि सेमिनरी है। वहां पर आपको नॉलेज तो मिल सकता है, वहां पर आपको रेवलेशन नहीं मिलेगा। रेवलेशन जो है, मुकाशवा जो है, खुदा का भेद जो है, खुदा का मुकाशवा, उसका कलाम जो है, वो खुदा के कदमों में बैठने से है। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल एफर्ट करना बड़ा जरूरी है। और फिर इससे अगला जो स्टेप क्या है, उसे और कहा गया कि तूने 1000 और आगे जाना है, यानी कि 1500 फीट और आगे पानी, और आगे जाके कुछ गहराई शुरू होती है। एकदम से गहराई नहीं होती, एकदम से ही आपको पुलपिट नहीं मिल जाएगा। पुलपिट शायद सारी उम्र ना खुदा आपको दे, आपकी खिदमत कुछ और हो सकती है। आपको उसमें ही रहना है और उसी अपने एरिया में रहकर आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप क्वायर में हैं, अगर आप चर्च के इंतजाम करने में हैं, आपको इस काम में आगे बढ़ना है और स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है। एक नौजवान का मुझे हमेशा मैं जिक्र करता रहता हूं। आपको बुक ऑफ एक्ट, इमाल रसूलों के कर्तव्य की किताब में ये शख्स मिलेगा जिसका नाम स्टीफनस है, स्टीफन जिसको कहते हैं। ये नौजवान लड़का ये चर्च में इंतजाम किया करता था, लेकिन लिखा कि इसके वसीला से मिरेकल होते थे, बड़े बड़े मिरेकल, और लोग इसके वसीला से कलीसिया में आते थे। नए लोग, ये नहीं है कि जिथे 2-4 खानदान ने बस उन्होंने किसी ने तोड़ ले, अपने नाम मिला ले, तो बड़ी कलीसिया तरक्की कर रही है। कोई कलीसिया नहीं। पूरी दुनिया में आज यही है कि किसी चीज़, कोई चर्च की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, पास्टर नहीं पसंद आता, कोई और चीज़ पसंद ना आए, मतलब वो भाई कलीसिया बढ़िया, क्यों नहीं भाई जी, क्यों कहना कलीसिया बढ़िया है, सानू तो मौका ही नहीं मिलता। स्पिरिचुअल एफर्ट करें। स्टीफनस ने एफर्ट की, वो इंतजाम करता था, लेकिन बाहर कलीसिया के बाहर बड़े बड़े काम होते थे। मुझे अपना याद है, जब हमने खिदमत की तो टाइम नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास्टर मैसेज शेयर करते थे, नए नए थे, जोश था, बलबला था कि कुछ करना है, खुदा का कलाम सुनाना है, लोगों को बचाना है। एक टारगेट था, इतनी रूहें, हम टारगेट से काम करते थे कि इतने बपतिस्मे, और हमारा इस साल का टारगेट 100 से 150 बैप्टिज्म का है, और ये चर्च भरे, और जो हमारा मेन चर्च है वहां पर 200 लोगों का टारगेट है। पर मेरे जीजो, इस टारगेट को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, जान फिशानी करनी पड़ेगी। एक बंदा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% मिले, ये जगह खुदा के लोगों, परस्तारों, खुदा की प्रस्तिश करने वाले, दुआ करने वाले, कलाम सुनाने वाले, खिदमत करने वाले खुदा के लोग यहां पर मिले, ये जगह भर जाए, तो सब मेहनत करें। आमीन। पास्टर मेहनत करें, पास्टर के साथी मेहनत करें, साथ बजाने वाले मेहनत करें,
गाने वाले मेहनत करें, कलीसिया का जो पीछे बैठने वाला शख्स है वो भी मेहनत करे और लोगों को खुदा के घर में लेकर आए। ऐसे ही एकदम से नहीं आप जब वो तैरने की हालत में आ जाएंगे, कोई भी ऐसे नहीं होता। हम टारगेट बना के निकलते थे और उस टारगेट के मुताबिक हम काम किया करते थे। शहबाज को पता है, और जब हम इनकी फैमिली में जाया करते थे तब मैं जॉब करता था। रात को मैंने ड्यूटी अपनी रखी हुई थी और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नाइट ड्यूटी पे रखा जाए। मैं एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था और सुबह सारा दिन मैं मेहनत करता था खुदा के काम, और कई दफ़ा 2-3 दिन मैं सोया नहीं करता था। मैंने अपनी जवानी का वक्त कैश किया है। हालेलुया। और अब मुझे 29 इयर्स जो है वो, अब ये जो मेरा साल है ये 30, मुझे जुलाई में 30 साल हो जाएंगे खुदा के काम को करते हुए, और एक टारगेट के मुताबिक जो है हम हमेशा काम करते हैं। विजन जब खुदा देता है तो उस विजन के मुताबिक स्ट्रगल करते हैं। इसलिए मैंने इस टारगेट में आपको साथ लिया है। मैं मिन्नत करता हूँ आप इस टारगेट में मेरी मदद करें। आप रोज़ा रखें। जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, जो हर रोज़ जिनका अपना पता है कि कौन संडे को, कौन मंडे को, कौन ट्यूसडे को रोज़ा रखता है, मेरी मिन्नत है कि आप दुआ में भी हमारी मदद करें ताकि हम उस टारगेट को हासिल करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु की ज़रूरत है। हमारी बोली बोलते हैं, हम उनको खुदा का वचन, जिंदा कलाम सुना सकते हैं ताकि उनकी जान बच जाए, उनकी रूह बच जाए। मेरे अजीजों, दूसरा टारगेट है घुटनों तक। हम अपने घुटनों पर आ जाएं, अपने खुदा के सामने घुटनों पर आ जाएं। जब हम होली स्पिरिट में बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले हम उसके चरणों में आते हैं, हम खुश होते हैं। और अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब हम पानी में जाना शुरू होते हैं, थोड़ा सा पानी होता है तो पाँव रखते हैं तो बड़ी आवाज़ आती है, धड़ाक धड़ाक है। तो जैसे जैसे आगे चले जाते हैं तो फिर आवाज़ भी कम हो जाती है, आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होता है। पानी कोशिश करता है कि हम बहाव के साथ ले जाएं। पानी का बहाव है। जैसे जैसे हम होली स्पिरिट के एक्सपीरियंस को लेते हैं, तजर्बा को लेते हैं, वैसे वैसे हम उसके बहाव में आगे बढ़ते जाते हैं। बहाव पानी का तेज होता चला जाता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा तेज होता है। आमीन। घुटनों तक जब आते हैं, हमें खुदा के सामने घुटने टेक देते हैं। खुदा मैं तो कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ। जब हम होली स्पिरिट से भरते जाते हैं ना, तो फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है, हमारी सोच चेंज होती रहती है। मैं कुछ नहीं, खुदा अपने घुटने टेक दिए। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। हम आगे बढ़ रहे हैं होली स्पिरिट में, हम एफर्ट कर रहे हैं, हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ये नहीं है कि हम छलांग लगाकर या हम जो है वो एक शॉर्टकट लेके जो आगे बढ़ रहे हैं। खुदा के लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। किसी को क्रॉस नहीं करते, किसी को काटते नहीं, किसी की जगह वो आके खड़े नहीं होते। यहाँ पर आप देखिए कि अब्राहम ने जो कुएं खोदे थे तो उन कुओं को बंद कर दिया गया, और इसहाक के नौकरों ने दोबारा उन्हीं कुओं को खोदा। तो क्या हुआ, इसहाक ने उन कुओं को वही नाम दिए जो उसके बाप ने उन कुओं को दिए थे। उसने उनके नाम नहीं बदले। जो पायनियर्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। जो सीनियर हैं आपके साथ चर्च में, आपके बिजनेस में, उनकी रिस्पेक्ट करें। हर चीज में अपना नाम करने की कोशिश मत करें। इसहाक और अब्राहम के लिए बार बार कुओं को बंद कर देते थे। वो लड़ते झगड़ते नहीं थे, हालांकि ताकतवर थे, सब कुछ था। वो दूसरी जगह पर चले जाते थे और फिर कुएं खोदते थे ताकि जिंदगी चलती रहे। पानी से जिंदगी चलती है ना, जिंदगी चलती रहे। जब हमें महसूस हो कि स्पिरिचुअली तौर से
जो है वो आप पर अटैक हो रहा है, दुश्मन जो है वो हमारी बरकतों को रोकता है, तो आप जो है खुदा के सामने झुकना है ताकि खुदा आपके लिए और गहरे कुएं खोदे, चश्मे जारी करे, चश्मे जारी करे। एक दफ़ा यीशु मसीह ये इन लोगों ने ही कुएं बनाए हुए थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब ने कुएं बनाए हुए थे। इनकी आदत थी जहाँ पर जाते थे मज़बा बनाते थे, वेदी बनाते थे, जहाँ पर कुर्बानी होती थी ऑल्टर बनाते थे और कुएं बनाते थे। एक वाक़या आपको पता है ना, यीशु मसीह का, सामरी औरत का, कुएं पर जाके यीशु बैठ गया। वो याकूब का कुआं कहलाता था और वहां पर क्या बात चल रही थी, उस औरत को क्या कहा कि मुझे पानी पिला। कहती है तू यहूदी हो के, चले इस बहस में हम नहीं जाते। तो यीशु ने कहने लगी तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, कोई भांडा शांडा तो है नहीं, तो क्यों पानी पीना है। यीशु ने कहा असल में वो चाहती नहीं थी ना, क्योंकि उसे दूर से आना पड़ता था, कुएं पे आना पड़ता था, घड़ा उठाया होता था, बर्तन उठा के आती थी, तो मुश्किल लगता था दूसरों को पानी पिलाना। अपने लिए भरी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी भरी है, अपना करिए कि ਤੁਹਾਡਾ भी होना करिए। कई भैन भी कहती ना घर च भाई मैं अपने भांडे धो रही, तू अपनी सफाई कर रही है। तो यीशु ने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, जो तेरे अंदर से चश्मा बन जाता, नदी बन जाता। हालेलुया, हालेलुया। तो कहती ला फिर दे दे मुझे। हालेलुया। वो पानी पीने के लिए आई, कुएं पर पानी भरने के लिए आई और उसे जिंदगी का पानी मिल गया। और उसी जगह उसने अपना मटका छोड़ा, अपना बर्तन छोड़ा, शायद टूट टाट गया होगा, उसे उस पानी की फिक्र ही नहीं रही, जिंदगी का पानी ले लिया और जाके लोगों को कहती है मुझे क्रिस्तस, मुझे मुक्तिदाता मिल गया। हालेलुया। मुझे बचाने वाला मिल गया, मेरी जिंदगी का मालिक मुझे मिल गया, जिसने मेरे गुनाह मुझ पर लाद दिए। आप भी निकलिए और लोगों को बताइए मुझे जिंदगी देने वाला मुक्तिदाता मिल गया, जिंदगी का पानी मिल गया। और ये दूसरा स्टेप था जो घुटनों तक है। हालेलुया। हम आगे बढ़ रहे हैं, पानी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर पानी कमर तक आ गया है। 1000 हाथ और आगे गया, 1500 फीट और आगे गया, पानी और ज्यादा गहरा हो गया, हम गहराई में जा रहे हैं। और खुदावंद यीशु ने कहा, पतरस को कहा कि गहरे में जाल डाल, तब कुछ मिलेगा, तब तुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तब तू कुछ हासिल कर सकेगा। गहरे में जाना है, एफर्ट करनी है, बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। ये नहीं कि गोडिया तक पानी आ गया तो डर के वापस आ जाना है। हम होली स्पिरिट के जो है बहाव में हैं, होली स्पिरिट हमें लेकर चल रहा है। हालेलुया। खुदा के फरिश्ता हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है हिजकिय्याह के साथ फरिश्ता बात करता है कि आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। खुदा के फरिश्ते मदद करते हैं, आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कमर तक पानी आ गया। इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा के साथ रफाकत करते हैं। जो खुदा के लोग हैं वो रफाकत करने में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, संगत करने में, फेलोशिप करने में मेहनत करते हैं, होली स्पिरिट के साथ वक्त गुजारते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एकदम से छलांग लगाकर या किसी को और क्रॉस करके या फिर कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाते जो शॉर्टकट होता है। वो आहिस्ता 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 स्ट्रगल करते हैं, करते चले जाते हैं और अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। पहले मैंने ये दसो कि टारगेट टूरगेट बनाया है जी कि नहीं? कई का तो भी नहीं होता है। वो पहले टारगेट तो बना लो, पादरी साहब टारगेट लगे ने, कोई है टारगेट है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने इस साल और ज्यादा रूहों को यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। हालेलुया, हमने और ज्यादा नेकी के काम करने हैं, हमने और ज्यादा अपना अगर फिजिकली बिजनेस है तो उसको और ज्यादा एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहीं पर कमर पर पानी आ गया है, यहीं पर आपको खुदा रुकने नहीं देगा। खुदा चाहता है कि हम और आगे बढ़े, और ज्यादा स्पिरिचुअली एफर्ट करें, और ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हों और फिर आगे जाएंगे। तो फिर आप जो है पानी में खड़े नहीं रह सकेंगे, फिर आप
पानी में गोते लगाएंगे और फिर तैरेंगे और खूब तैरेंगे और फिर पानी के बहाव में आप बहते चले जाएंगे। होली स्पिरिट के बहाव में आप बहते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, हालेलुया, खुदा पूरे तौर से आपको अपने रूह कुदस की पेट में ले लेगा, हालेलुया। और फिर आप अपनी मर्जी से नहीं, जो काम करेंगे वो होली स्पिरिट के कहने से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद जब खुदा का बंदा इस विजन को देखकर बाहर आया, उसने पहले वो चीजें देखी, उसने बाद में वो चीजें देखी जो पहले नहीं देखी। बाद में उसने क्या देखा है? बाद में उसने दोनों किनारों पर दरख्त देखे हैं, हर तरह के फल देने वाले दरख्त, हर तरह के फल देने वाले दरख्त। और कैसे दरख्त हैं ये? हर महीने फलते हैं, हर महीने नवा ही फल, हर महीने नवी बरकत, हालेलुया। ये नहीं ऐसी मारेगे लुटेगे मारेगे, कुछ नहीं है, नहीं खाली पता नहीं कमाने किधर चले जाता है। होली स्पिरिट के बहाव में चलेंगे, मुसलसल खुदा के पाक रूह के पीछे चलेंगे, एफर्ट करेंगे, स्पिरिचुअल एफर्ट करेंगे। मेरे जीजो, हर महीने नया फल, नई बरकत आएगी। और ये फल फिजिकली भी हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल फल भी हैं। मेरे साथ एक हवाला देखें, इसके बाद हम दुआ करेंगे। गलतियों 5वां बाब उसकी 22 और 23 आयत को देखेंगे। फलों की कमी नहीं, बरकत की कमी नहीं खुदा के पास, सिर्फ एफर्ट करने की जरूरत है। अगर आप 100% चाहते हैं, जैसे आइजक को 100% मिला, उसने बीज बोया, आप बीज नहीं बोते, इसलिए 100% आपको मिलता नहीं है। आप स्पिरिचुअली तौर से बीज बोना शुरू करें, बीज बोना शुरू करें। और फिर आप देखिए गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इसके बाद पंजाबी में भी पढ़ दें। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। आमीन। पंजाबी में भी पढ़ देना। गलतियों 5वां उसकी 22वीं और 23वीं वचन को आप पढ़िए जोर से। पर आत्मा ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, जब आप होली स्पिरिट के पीछे चलेंगे तो ये जो स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं और जो फिजिकल फ्रूट्स हैं, ब्लेसिंग्स जो हैं, वो आपके पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। आप जब एफर्ट करना सीख जाएंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहेंगे तो मेरे जीजो बरकत पाएंगे। सो आइए खुदा से 100% ले। जैसे आइजक ने बीज बोया, बीज आसानी से नहीं बोया जाता। एक तो आपका हदिया है, बीज आप खुद भी हैं। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं। जैसे बीज जब तक जमीन में मरकर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बहुत सा फल नहीं लाता। अपने आप को खत्म करें, अपने आप को बीज की मानिंद रखें। हालेलुया। और बीज बोना शुरू करें रूहानी तौर से। खुदा के कलाम को हमने पिछले संडे भी देखा था, वाइज की किताब, अब मुझे इसका हिंदी पंजाबी का पता नहीं, वाइज की किताब में 11वें बाब की 4 से 6 आयत में उपदेश, वहां पर लिखा है कि दिन को भी रात जो हवा का रुख देखता है और बादलों को देखता है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि सुबह को भी बीज बो और शाम को भी बीज बो। पता नहीं कौन सा बढ़े, कौन सा फल लाए, सुबह वाला या शाम वाला या दोनों के दोनों। इसलिए सुबह भी खुदा का काम करें, शाम को भी खुदा का काम करें।
सुबह भी अपनी जॉब करें और शाम को भी अपनी जॉब करें ताकि आपको ज़्यादा फील करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जोरदार तालीम से खुदा का शुक्र।